میں رکشے کو کارخانے کی ایک طرف لے گیا، جھاڑیوں کے پیچھے رکشے کو ایک گڑھے کے کنارے کھڑا کر کے خود باہر نکلا اور اکا دکا بنے کوارٹروں کی دیواروں کی آڑ لیتا کارخانے کے گیٹ کے پاس آ گیا۔ مزدور اندر داخل ہوئے جا رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ ہی کارخانے کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ یہ کپڑے کا کارخانہ تھا۔ احاطے میں ایک جانب 2 ٹرک کھڑے تھے جن پر کپڑوں کی بڑی بڑی گانٹھیں لادی جا رہی تھی۔ کارخانے کے بڑے دفتر کی پیشانی پر شیوا ناتھ کلاتھ میلز گجراتی زبان میں لکھا تھا۔ میں یوں ہی دفتر کے برآمدے میں چلا گیا۔ آفس کے باہر چپڑاسی اسٹول پر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے نمسکار کیا اور کہا کہ میں بیکار ہوں، نوکری کی تلاش میں آیا ہوں۔ چپڑاسی نے بڑی بیزاری سے مجھے وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا، بھائی میں تامل ناڈو کا رہنے والا ہوں، پردیسی ہوں، رات اسٹیشن پر گزاری ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ چپڑاسی رکھائی سے بولا، ارے بھائی جی، ہم نے نوکری دلانے کا کوئی ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا، تامل ناڈو کے ہو تو میں کیا کروں، جاؤ یہاں نوکری نہیں ہے۔ اتنے میں چیک کے پیچھے سے آواز آئی، ہربھجن لال اس آدمی کو اندر بھیجو۔ چپڑاسی فوراً اسٹول سے کھڑا ہوا، اچھا صاحب، پھر چیک اٹھا دی۔ میں دفتر میں داخل ہو گیا۔ مجھے نوکری وغیرہ کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، بس پیچھے آنے لگی ملٹری پولیس سے چھپنا چاہتا تھا۔ دفتر محفوظ سا تھا مگر بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ دیوار پر مہاتما گاندھی کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ بڑی میز کے پیچھے کرسی پر ایک کالے رنگ کا گھنگریالے بالوں والا معمر آدمی ٹھنڈے سوٹ میں بیٹھا سیگار پی رہا تھا۔ فضا میں سیگار کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے سنہری فریم والے چشمے کے پیچھے سے مجھے غور سے دیکھا اور پوچھا، تم تامل ناڈو کے رہنے والے ہو؟ میں سمجھ گیا کہ اس نے میرے ساتھ یہ رعایت محض اس لیے کی ہے کہ یہ شخص بھی ضرور تامل ناڈو کا رہنے والا ہے۔ میں نے نمسکار کرتے ہوئے کہا، جی ہاں صاحب، میں مجورائی کا ہوں، ماتا پتا نہیں ہے، کوئی بھائی بند بھی نہیں رہا، کل سے شہر میں بیکار بھوکا پیاسا پھر رہا ہوں، نوکری مل جائے تو آپ کی بڑی دیا ہوگی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ کرشن، میں نے بڑے ادب سے کہا۔ اس نے مجھے کونے میں رکھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر چپڑاسی کو بلا کر میرے لیے چائے اور بسکٹ لانے کو کہا۔ چپڑاسی میری طرف گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب اس سدیڑ عمر شخص نے کہا، مجھے تم سے ہمدردی ہے، میں خود تامل ناڈو کا رہنے والا ہوں مگر میں رامشور کا ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں اپنے کارخانے میں ملازم رکھ لیتا ہوں۔ تم کتنا پڑھے لکھے ہو؟ جنوبی بھارت میں تعلیم بہت عام ہے اور ہر اسکول انگلش میڈیم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو 90% جنوبی ہند کے لوگ ایسے ملیں گے جو بڑی روانی سے انگریزی بول لیتے ہیں۔ میں نے کہا، میں صرف میٹرک تک پڑھا ہوں۔ وہ سیگار کی راکھ ایش ٹرے میں جھاڑتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تم آج سے کارخانے میں کام شروع کر دو، ابھی تمہاری تنخواہ 500 روپے ہوگی، پھر تمہاری ترقی کر دوں گا۔ اتنے میں چپڑاسی چائے اور بسکٹ لے آیا تھا۔ میں چوری چوری چک میں سے باہر بھی نگاہ ڈال لیتا تھا کیونکہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا رکشہ میرے دشمنوں کو مجھ تک آنے میں مدد دے سکتا تھا۔ اس آدمی نے فون پر کسی آدمی سے میرے بارے میں بات کی اور پھر تامل زبان میں مجھ سے مخاطب ہوا، کرشن، جاؤ دوسرے صاحب سے جا کر مل لو، میرے کمرے سے تیسرا کمرہ اس کا ہے۔ میں پرنام کر کے دفتر سے باہر آ گیا۔ مسٹر سکسینہ کے کمرے کی طرف بڑا ہی تھا کہ جدھر میں نے رکشہ کھڑا کیا تھا اس طرف سے ملٹری پولیس کے 2 جوان کارخانے کی طرف آتے دکھائی دیے۔ میں الٹے قدم واپس ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا چپڑاسی کے قریب سے گزرتا برآمدے کی دوسری جانب نکل گیا۔ یہاں گانٹھوں سے لدا ہوا ٹرک روانہ ہونے کے لیے پیچھے کی طرف کھسک رہا تھا۔ مجھے اور تو کچھ نہ سوجا، لپک کر ڈرائیور کے پاس گیا اور بڑے اعتماد سے کہا، مجھے سکسینہ صاحب نے آپ کے ساتھ جانے کو کہا ہے۔ مسٹر سکسینہ کا نام میں نے سن رکھا تھا، ضرور یہ اسی کارخانے کا افسر تھا، اس لیے اس کا نام سن کر ڈرائیور نے مجھے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بھاگ کر ٹرک کی پچھلی طرف گیا اور اچھل کر اس میں سوار ہو گیا اور بڑی بڑی گانٹھوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرک کارخانے کے احاطے سے نکل کر کسی نامعلوم منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اگر میں ہوشیاری سے کام نہ لیتا تو میرا آج گرفتار ہو جانا یقینی تھا۔ ایک بڑی سڑک پر آنے کے بعد ٹرک کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ وہ شہر کے جنوب مغربی حصے کی طرف جا رہا تھا، شاید اسے شہر سے باہر کسی گودام میں جانا تھا۔ بہرحال میں ٹرک کے پیچھے دبکا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ٹرک کی رفتار دھیمی ہوئی تو باہر چھلانگ لگا دوں گا۔ ٹرک ایک ندی کے پل کے قریب تھا اور اس کی رفتار مدھم ہو گئی۔ میں نے سر نکال کر دائیں بائیں دیکھا، کھیتوں میں کہیں کہیں مکان بنے ہوئے تھے۔ ٹرک پل پر سے گزر گیا، اس کی رفتار پھر تیز ہو گئی۔ میں پیچھے کو سمٹ گیا۔ ٹرک شہر کی گنجان آبادی سے باہر نکل آیا تھا اور میری خوش قسمتی سے آگے ریل کا پھاٹک بند تھا۔ جو ہی ٹرک ایک بس کے پیچھے رکا، میں باہر کود گیا۔ لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دینے کے لیے میں یوں اطمینان سے سڑک کی ڈھلان اترنے لگا جیسے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ نشیب میں کھیت تھے،
दो चार खेतों में ऊंची फसल खड़ी थी। मैं फसल की ओट में उतरे ही लंबे लंबे डग भरने लगा। अंदाजे से मैंने अपना रुख जनूब मशरक की तरफ कर लिया था, क्योंकि उसी रुख पर अपने एजेंट की कमी गाह यानी गैराज था। इस इलाके से मैं पहली बार गुजर रहा था। खेत खत्म हुए तो ग्वालों की बस्ती आ गई, जहां गाय इधर उधर बंधी हुई थी और ग्वाले अपने काम में लगे हुए थे। मैं खामोशी से दो एक को नमस्कार करता हुआ वहां से भी गुजर गया। रेलवे लाइन बुलंदी पर थी। मैंने उसे पार करने की बजाय इसके मुतवाजी जरा नशीब में रह कर ही चलना ज्यादा मुनासिब समझा। रास्ते में दो एक फाटक भी आए। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं रास्ता भूल गया हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक इस कारखाने की चिमनी दिखाई नहीं दी थी जो अपने एजेंट के गैराज के करीब वाक़ था। मैंने हिम्मत ना हारी और चलता चला गया। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि मैं ठीक सिमत चल रहा हूँ। सूरज सर पर आ गया था। चलने से मुझे गर्मी लग रही थी और पसीना भी बहने लगा था। एक जगह मैं रेलवे लाइन पर चढ़ा तो दूर दरख्तों के अकब में किसी कारखाने के ऊपर को उठी हुई चिमनी नजर आई तो मेरे दिल ने कहा, यही तो वो कारखाना है जिसकी मुझे तलाश है। मैंने रेलवे लाइन पार की और दूसरी सिमत चल पड़ा। मेरे पीछे एक मुसाफिर गाड़ी रेलवे लाइन पर से शोर मचाती गुजर गई। यहाँ इर्द गिर्द गंदे जोहड़ थे, जहाँ स्क्रैप के ढेर लगे हुए थे। आखिर में दरख्तों के झुंड में से होता हुआ कारखाने के करीब आया तो मेरा चेहरा खुशी से दमक उठा। मेरी बाईं तरफ पुरानी 12 दरी वाला तालाब था और कुछ फासले पर अपने एजेंट का क्वार्टर साफ नजर आ रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए तालाब की 12 दरी के पास आकर रुक गया। फिर क्वार्टर की तरफ और से देखा तो मालूम हुआ कि कोई नहीं है क्वार्टर के सामने। गैराज का जितना हिस्सा मुझे नज़र आ रहा था वो वीरान था। कोई पुरानी गाड़ी भी वहाँ खड़ी नहीं थी। मेरा दिल ये सोचकर परेशान सा हुआ कि कहीं एजेंट पकड़ा तो नहीं गया। मुझे 12 दरी के पीछे 15 मिनट गुजर गए। इस अरसे में ना तो वहाँ कोई आया और ना कोई क्वार्टर में से बाहर ही निकला। अपने एजेंट कारीगर का लड़का भी नजर नहीं आ रहा था। अब मैंने खुद जाकर हालात का जायजा लेने का फैसला कर लिया था। मैं 12 दरी से हटकर क्वार्टर की अकबी दीवार की तरफ चलने लगा। मैं यूं चल रहा था जैसे क्वार्टर की तरफ नहीं जा रहा बल्कि उसके करीब से गुजरने वाला हूँ। क्वार्टर के पीछे पहुंचकर देखा कि क्वार्टर की पिछली खिड़की बंद थी। मैं आगे से होकर क्वार्टर के सामने आ गया। वाकई गैराज खाली और वीरान पड़ा था। बरामदे में कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। जरा करीब गया तो देखा दरवाजे पर ताला लगा था। गैराज के कोने में जो नलका लगा था, मैं वहां बैठकर मुंह हाथ धोने लगा। मैं गौर कर रहा था कि अपना एजेंट कहाँ है। क्या वो किसी काम से शहर गया हुआ है या उसे गिरफ्तार कर लिया गया है? अगर वो गिरफ्तार हो गया है तो खुफिया पुलिस के आदमी जरूर इस क्वार्टर की निगरानी कर रहे होंगे। मैं ज्यादा मोहतात हो गया। बड़ी तवज्जो से पानी के छींटे मुंह पर मारने लगा। फिर जोर जोर से गरारे करने लगा जैसे मुझे इर्द गिर्द की फिजा से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुंह हाथ धोकर उठा, धोती के पल्लू से मुंह खुश्क किया और नजर भरकर एक बार फिर क्वार्टर के दरवाजे पर लगे ताले को देखा। इसमें कोई खास बात नहीं थी, मामूली सा ताला था। मैंने तालाब वाली 12 दरी की तरफ कदम उठाया ही था कि मुझे पीछे से साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दी। पलट कर देखा तो अपना एजेंट साइकिल पर सवार आगे औजारों का थैला लटकाए चला आ रहा था। उसे खैरियत में देखकर जान में जान आई। नलके को दोबारा खोल दिया और मुंह नल से लगाकर पानी पीना शुरू कर दिया। अपना एजेंट साइकिल पर से उतर आया और मेरे करीब से गुजरते हुए बड़ी राजदारी से बोला, दरख्तों में चले जाओ, आध घंटे बाद आना। मैं यूं ही जोर जोर से खांसता हुआ तालाब की तरफ चल पड़ा। तालाब की एक जानिब नीम के 2-4 दरख्त उगे हुए थे। मैं उनकी ठंडी छांव में घास पर लेट गया। मैं इस रुख पर लेटा था कि मेरी आंखें क्वार्टर के अहाते को साफ तौर पर देख रही थी। दादा भाई ताला खोलकर कमरे में चला गया। वापस बाहर आया तो हाथ में एक कनस्तर पकड़ा हुआ था। कनस्तर एक तरफ रख कर वो वापस कमरे में गया और अंदर से एक चारपाई निकाल कर सेहन में लाकर बिछा दी। फिर वो किसी गाड़ी का मिड गार्ड उठा लाया और उसे रेती से रगड़ना शुरू कर दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसने मुझे आध घंटा बाद आने का सिग्नल क्यों दिया है। इसने चारपाई भी कमरे से निकाल कर बिछा दी थी। जरूर कोई मेहमान आ रहा था। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि कच्ची सड़क पर मुझे दूर से एक मोटरसाइकिल नजर आता दिखाई दिया। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मोटरसाइकिल पर पुलिस का एक सिपाही बैठा था। मैंने उस पर नजरें गाड़ दी। ये कमबख्त यहाँ क्यों आ रहा है? अगर मुझे अपने एजेंट ने दरख्तों में जाने का इशारा किया है तो इसका साफ मतलब है कि इसे मालूम है कि वहाँ पुलिस का एक सिपाही आ रहा है। घबराने की कोई बात नहीं थी। सिपाही मोटरसाइकिल लेकर गैराज के अहाते में आ गया। अपने एजेंट ने उठकर उसे सलाम किया। मोटरसाइकिल सिपाही ने एक तरफ खड़ी कर दी। एजेंट उसे झुककर इधर उधर से देखने लगा। फिर मुस्कुराकर सिपाही से कोई बात की और चारपाई पर बैठने का इशारा किया। सिपाही चारपाई पर बैठ गया।
अपने एजेंट ने मोटरसाइकिल के इंजन में से कोई पुर्जा निकाल कर उसे मैले चीथड़े से पूंछा और फूंक मारकर गौर से देखा। फिर सिपाही से बातें करने लग गया। वो बार बार मोटरसाइकिल की तरफ इशारा कर रहा था। सिपाही ने अपनी कलाई की घड़ी देखी, फिर चारपाई से उठा और अपने एजेंट से कुछ बातें करने के बाद पैदल ही वापस चला गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि बला टल गई है। अपना एजेंट उसी तरह जमीन पर बैठकर गाड़ी के मिड गार्ड पर रेती चलाने लगा। रेती के घिसने की आवाज़ बराबर मुझ तक पहुंच रही थी। सिपाही सड़क पर काफ़ी दूर जा चुका था, मगर अपना एजेंट दादा भाई उसी तरह काम में मसरूफ रहा। कुछ देर बाद उसने सर उठाकर सड़क की तरफ देखा। कच्ची सड़क बिल्कुल खाली थी। तब उसने उन दरख्तों पर एक नज़र डाली जहां मैं लेटा हुआ था। ये इशारा था कि मैं अब उसके पास आ जाऊं। मैं आहिस्ता से उठा और अपना रुख क्वार्टर की तरफ कर लिया। क्वार्टर के अहाते में पहुंचकर मैंने अपने एजेंट से कोई बात न की और पानी के नलके को खोलकर हाथ धोने शुरू कर दिए। एजेंट ने मिड गार्ड पर रेती घिसते हुए कहा, अंदर चले जाओ। मैं धोती के पल्लू से हाथ साफ करता क्वार्टर के अंदर चला गया। अंदर चारपाई नहीं थी। कोने वाले तख्त पर मिस्त्रियों के औजार पड़े थे। मैं तख्त के कोने पर बैठ गया। चंद सेकंड बाद दादा भाई अध खुले दरवाजे में आकर खड़ा हो गया। बाहर देखते हुए वो मुझसे हम कलाम हुआ, तुम्हारी उस डाकू लड़की ने मुझे सख्त मुसीबत में मुब्तला कर दिया है। मैं चौंक पड़ा। डाकू की लड़की से दादा भाई की मुराद यकीनन सुधा नगनी की ही हो सकती थी। वह आहिस्ता आहिस्ता बोले जा रहा था, तुम्हें उसको साथ लाने की ज़रूरत क्या थी? ये बात तुम्हारे रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगी कि तुमने दुश्मन के मुल्क में एक औरत पर भरोसा करके उसे अपने ऑपरेशन में शरीक किया है। मैंने बेइख्तियार होकर पूछा, क्या क्या सुधा नगनी भाग निकली है? एजेंट ने गुस्सीली आवाज में मुझे डांट पिलाते हुए कहा, उस औरत की वजह से हम अपने एक कीमती और लायक साइंसदान से महरूम हो गए हैं। वो तुम्हारी लीडर नहीं थी, फिर तुमने उसके पीछे लगकर सांपों की पिटारी जीप पर क्यों फेंकी? क्या कभी इस तरह भी कमांडो ऑपरेशन हुए हैं? मैं कुछ कहने ही वाला था कि एजेंट एक बार फिर गुस्से से बोला, ये डाकू औरत भी हमारे राज में शरीक हो गई है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो भारत की रहने वाली है। वो किसी वक्त भी हमारे खिलाफ मुखबरी कर सकती है। एजेंट असूली तौर पर ठीक कह रहा था, लेकिन वो सुधा नगनी के किरदार से वाकिफ नहीं था। जब मैंने इससे दोबारा सवाल किया कि सुधा नगनी फौज की हिरासत से भाग गई है, तो उसने मुझे डांट दिया, क्या तुम उससे इश्क कर रहे हो? तुम अपने साथ मुझे भी ले डूबोगे। लेकिन याद रखो, अगर ऐसा वक्त आ गया तो मैं तुम्हें पहचानने से साफ इनकार कर दूंगा, ख्वाह मेरे सामने तुम्हें फांसी ही क्यों ना दी जा रही हो। ये कहकर वो दरवाजा बंद करके बाहर अहाते में चला गया। उसकी बातों का मैंने बुरा न माना, क्योंकि अपनी जगह पर वो सच्चा था। लेकिन उसे इस हकीकत की खबर नहीं थी कि सुधा नगनी जान दे देगी, लेकिन मेरे खिलाफ कभी मुखबरी नहीं करेगी। मैं अपने दिली जज्बात को पोशीदा नहीं रखना चाहता था। सच्ची बात यह है कि मुझे सुधा नगनी के बच निकलने की बेहद खुशी हुई थी। उसी लम्हे शायद पहली बार मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं वाकई सुधा नगनी से मोहब्बत करने लगा हूँ। मेरा जज्बा मोहब्बत जैसे यक लख्त बेदार हो गया था और मेरे ज़मीर को कचोके लगा रहा था कि मैंने उससे पहले सुधा नगनी को मरहटा फौजियों के कब्जे से छुड़ाने की कोशिश क्यों न की कि मैंने इससे पहले सुधा नगनी को मरहटा फौजियों के कब्जे से छुड़ाने की कोशिश क्यों न की। मेरी आंखों में उसकी कैसरी आंखों वाली वैसी शक्ल घूमने लगी। मेरा दिल उससे मिलने को बेताब हो गया। उसकी सांप की फुनकार जैसी खुशक पुरस्रार आवाज़ मेरे कानों में सरगोशियां कर रही थी, मुझे अपने पास बुला रही थी। मैं सुधा नगरी की बहादुरी पर दंग रह गया। मरहटा फौजियों की कैद से निकलकर उसने शुजाअत का बेमिसाल कारनामा अंजाम दे दिया था। मुझे अपने एजेंट से भी हमदर्दी थी, मुझे इसकी मजबूरियों का भी एहसास था, लेकिन वो नहीं जानता था कि सुधा नगनी मेरे इस मिशन में मेरी किस कदर मददगार साबित हुई है। उसकी मदद के बगैर शायद ही मैं डॉक्टर फरीदी की बेटी नूरीन को भी दुश्मन के हिसार से निकाल कर उसके पास पहुंचा सकता। अभी तक अपने एजेंट ने मुझे नूरीन के बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो बाहर अहाते से गायब हो गया था। मैंने दरवाजे की दर्द में से बाहर देखा, वो अहाते में नहीं था। यह भी वैसे कमाल का आदमी था। दुश्मन के मुंह में बैठकर हमारी हिफाजत भी कर रहा था और अपना फर्ज भी निभा रहा था। उसने सुधा नगनी को ज़रूर किसी और मकाम पर रखा होगा। उसकी साइकिल अहाते की दीवार से लगी हुई थी। वो पैदल कहाँ चला गया था? मैं दीवार के साथ लगा अभी तक बाहर झांक रहा था। बाहर वीरानी का आलम था। दादा भाई का मिड गार्ड और रेती चारपाई के पास ज़मीन पर पड़े थे। लगता था कि वो कहीं किसी शय का बंदोबस्त करने गया है। मैं वापस तख्त पर आकर बैठ गया। मेरे ख्यालात सुधा नगनी के गिर्द घूम रहे थे। वो किस तरह फरार हुई होगी? इस वक्त कहाँ होगी? कहीं वो वापस अपने डेरे पर तो नहीं चली गई होगी? अगर ऐसी बात हुई
تو میں اس سے ملنے ایک بار ضرور جاؤں گا۔ میں اس سے ملے بغیر بھارت کا بارڈر کراس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں یوں ہی خیالات میں گم رہا اور وقت گزرتا چلا گیا۔ مجھے کسی موٹر کے انجن کی آواز دور سے آتی سنائی دی۔ آواز آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر باہر دیکھا۔ کچے راستے پر گرد اڑاتی ایک پرانی پھٹیچر ایمبیسیڈر گاڑی کوارٹر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر وہ گیراج کے احاطے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس میں اپنا ایجنٹ ہی سوار تھا۔ باہر نکل کر اس نے گاڑی کا بونٹ کھول کر جھک کر انجن کو دیکھا، کونے سے کنستر اٹھایا، نلکے پر جا کر پانی بھرا اور ریڈیئیٹر میں ڈالنے لگا۔ پانی ڈالنے کے بعد اس نے بونٹ بند کیا، کنستر دیوار کے ساتھ رکھ کر رومال سے ہاتھ پونچھے، آستین سے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پونچھا، جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا، ماچس کی تیلی نلکے کی طرف پھینکتے ہوئے چاروں طرف ایک عقابی نظر ڈالی اور بند دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے بولا، تم گاڑی میں بیٹھ جاؤ، پچھلی سیٹ پر۔